بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ملک ازبکستان کے حصہ سوم پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا ملک ازبکستان کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ اس سبق کے اندر جو اہم مباحث تھی ان میں سے سب سے پہلی بحث جس پر ہم نے گفتگو کی وہ ملک ازبکستان کے مذاہب تھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ملک ازبکستان کی مختصر تاریخ تھی۔ اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ تاریخ قبل از اسلام سے تھا اور دوسرے حصے کا تعلق تاریخ بعد از اسلام سے تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ ملک ازبکستان کا طرز حکومت تھا۔ یہ پچھلے سبق کی اہم مباحث تھی جس پر ہم نے ایک نظر دوڑائی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی اہم ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ازبکستان کے وسائل پر ہے۔ ان وسائل کے اندر آج سب سے پہلے ہم جس پوائنٹ پر بات کریں گے وہ ہے ملک ازبکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر۔ اسی طرح آج کے سبق کا دوسرا پوائنٹ جو ازبکستان کے وسائل سے تعلق رکھتا ہے وہ ملک ازبکستان کی معدنیات ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ ملک ازبکستان کی زراعت ہے۔ اسی طرح آج کے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ ملک ازبکستان کی سیاحت ہوگا۔ تو یہ ہمارے سبق کی آج اہم پوائنٹس ہیں جس پر نظر دوڑائی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک ازبکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ ملک ازبکستان اپنے بھرپور وسائل کے لیے مشہور ہے جو اس ملک کو بے پناہ اقتصادی طاقت دیتے ہیں۔ ازبکستان کے وسائل کو قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور ثقافتی وسائل سمیت مختلف زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ازبکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر پر بات کریں گے۔ ازبکستان ایک وسطی ایشیائی ملک ہے جس کے پاس تیل اور گیس کے اہم ذخائر ہیں جو اسے خطے کی توانائی کی منڈیوں میں ایک اہم کھلاڑی بناتا ہے۔ ازبکستان وسطی ایشیا میں قدرتی گیس پیدا کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ ملک نے 1.2 ٹریلین کیوبک میٹر کے قدرتی گیس کے ذخائر کو دریافت کیا ہے جس سے یہ دنیا کا 11واں بڑا ملک ہے۔ ازبکستان کے قدرتی گیس کے ذخائر کی اکثریت بخارا خیوا کے علاقے میں واقع ہے۔ دیگر علاقوں میں وادی فرغانہ اور اسٹریٹ سطح مرتفع ہیں۔ ازبکستان کے قدرتی گیس کے ذخائر زیادہ تر گھریلو استعمال میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ازبکستان کچھ ہمسایہ ممالک جیسے قازقستان، روس اور چین کو بھی گیس ازبکستان کے تیل کے وسائل پر بات کرتے ہیں۔ ازبکستان کے پاس تیل کے اہم ذخائر جن کے ذخائر تقریباً 594 ملین بیرل ہیں۔ تیل کے ذخائر زیادہ تر وادی فرغانہ میں واقع ہیں جبکہ چھوٹے ذخائر بخارا خیوا کے علاقے میں ہیں۔ ازبکستان کی تیل کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو 2020 میں تقریباً 80,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ ملک بنیادی طور پر اپنا تیل پڑوسی ممالک جیسے کہ قازقستان اور روس کو برآمد کرتا ہے۔ مجموعی طور پر جائزہ لیتے ہیں کہ ازبکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر ملک کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ حکومت اپنی توانائی کے شعبے کو مزید ترقی اور وسعت دینے اور مستحکم توانائی کی سپلائی فراہم کرنے اور اس کی برآمدی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ازبکستان کا مستحکم سیاسی اور اقتصادی ماحول اسے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش منزل بناتا ہے اور امکان ہے کہ ملک کا تیل اور گیس کا شعبہ خطے کی توانائی کی منڈیوں میں اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ملک ازبکستان کی معدنیات۔ ازبکستان وسطی ایشیا میں واقع ہے اور اپنے معدنی ذخائر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ملک کو دنیا میں سونے کے سب سے بڑے پروڈیوسر اور برآمد کنندگان میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
सोने के अलावा उज़्बेकिस्तान में दीगर मादनियात जैसे तांबा, यूरेनियम, सीसा, जिंक और नायाब ज़मीनी धातुओं के अहम ज़खायर हैं। सबसे पहले सोने पर बात करते हैं। उज़्बेकिस्तान दुनिया में सोना पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक है, जहां सालाना 100 टन से ज़्यादा पैदावार होती है। सोने के ज़खायर बुनियादी तौर पर मुल्क के मशरकी हिस्से, खास तौर पर तियान शान पहाड़ों में पाए जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में सोने की सबसे बड़ी कानों में मरुनताउ माइन, कज़ेलकम माइन और अमानता यताउ कान शामिल हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान की एक और अहम मादनियात तांबा है। उज़्बेकिस्तान में तांबे के भी अहम ज़खायर हैं, जो बुनियादी तौर पर अल-मालिक कान कुनी के इलाके में वाक़ हैं। अल-मालिक कान कुनी का इलाका उज़्बेकिस्तान में तांबे की सबसे बड़ी कान अल-मालिक कान और मेटालर्जिकल प्लांट का घर है। प्लांट बिजली के मकासद के लिए तांबे को इस्तेमाल करता है, जिसमें तांबे की तारें वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान की दीगर मादनियात में यूरेनियम, सीसा, जिंक और नायाब ज़मीनी धातुओं के भी अहम ज़खायर मौजूद हैं। आज के सबक का हमारा दूसरा पॉइंट भी मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं आज के सबक के तीसरे पॉइंट की जानिब। आज के सबक का हमारा तीसरा पॉइंट उज़्बेकिस्तान के वसाइल में से एक और अहम वसाइल ज़राअत है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं और जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान के अंदर ज़राअत की क्या सूरत हाल है। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया का एक खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है, जिसका मुतनव्वे जोग्राफिया सहराओं से लेकर पहाड़ों तक है। ज़राअत मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है, जो GDP में 1/3 से ज़्यादा हिस्सा डालती है और तकरीबन 27% अफरादी क़ुव्वत को मुलाजमत देती है। उज़्बेकिस्तान की आबो हवा आम तौर पर गर्म और खुश्क होती है, जिसकी वजह से आपाशी के मुनासिब निज़ाम के बगैर फसलें उगाना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत ने आपाशी के बुनियादी ढांचे में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है और ये मुल्क दुनिया के सबसे बड़े आपाशी के निज़ामों का घर है। आइए उज़्बेकिस्तान की पहली फसल के बारे में जानते हैं। उज़्बेकिस्तान के अंदर सबसे अहम फसल कपास की फसल है। कपास मुल्क की अहम नकदी फसल है और इसे अक्सर सफ़ेद सोना कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कपास पैदा करने वाले और बरामद कुनंदगान में से एक है, जहां मुल्क की ज़रई बरामदात में कपास का हिस्सा तकरीबन 60% है। उज़्बेकिस्तान की दीगर अहम फसलों पर एक नज़र दौड़ाते हैं। इसकी दीगर अहम फसलों में गंदम, जौ, चावल, फलों में अंगूर और खरबूजे शामिल हैं। इसी तरह उज़्बेकिस्तान मवेशियों की फार्मिंग के हवाले से भी जाना जाता है। मवेशियों की फार्मिंग उज़्बेकिस्तान में भी राइज है, जहां भेड़, मवेशी और मुर्गियों की फार्मिंग की जाती है। जानवरों की मसनूआत जैसे गोश्त, दूध और अंडे बहुत से घरानों के लिए ग़िज़ाइयत और आमदनी के अहम ज़राए हैं। मजमूई तौर पर अगर ज़राअत का जायज़ा लिया जाए तो ज़राअत उज़्बेकिस्तान की मईशत का एक अहम शोबा है और अपने लोगों के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने में अहम किरदार अदा करता है। इस तरह हमारे सबक का आज का ये पॉइंट मुकम्मल हुआ। अगले पॉइंट की जानिब चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है मुल्क उज़्बेकिस्तान की सयाहत। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया में वाक़ एक मुल्क है, जिसकी तारीख़ और थकाफ़त बहुत ज़्यादा है। ये समरकंद, बुखारा, खीवा और ताशकंद जैसे मशहूर शहरों का घर है। उज़्बेकिस्तान के पास उन सयाहों के लिए बहुत कुछ है जो मुनफरिद और दिलचस्प तलाश करना चाहते हैं। सबसे पहले उज़्बेकिस्तान में फ़न तामीर शानदार है। शहरों में बड़ी तादाद में इस्लामी यादगारें, मदारिस और मसाजिद हैं। इमारतों में इस्तेमाल होने वाले पेचीदा डिज़ाइन और रंग मुल्क के भरपूर विरसे और सकाफत को जाहिर करते हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान अपने खाने के लिए भी बहुत मशहूर है। ये मुल्क कदीम शार रेशम पर वाक़ है और इसने पूरी तारीख में मुख्तलिफ सकाफतों के जायकों को अपनाया है। रवायती पकवान जैसे पल्लू, जिसे चावल का पेलाव, शाशल्क और लगमान ज़रूर आजमाए जाने वाले पकवान हैं। उज़्बेकिस्तान एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक बेहतरीन मंजिल है। मुल्क में कई पहाड़ी सिलसिले हैं जो ट्रैकिंग, कोहे पैमाई और स्कैनिंग पेश करते हैं। वसी रेगिस्तान, सैंड बोर्डिंग, सहराई सफ़र करने वालों के लिए भी बेहतरीन है। आखिर में जायज़ा लेते हैं कि उज़्बेकिस्तान एक बहुत ही सस्ती मंजिल है,
मुल्क में रहने की कीमत कम है और सामान और खदमात की मुनासिब कीमतें हैं। ये इसे मुसाफिरों के लिए एक पुरकशिश मंजिल बनाता है। उज़्बेकिस्तान एक मुनफरद सकाफती विरसा और भरपूर तारीख का हामिल मुल्क है। अपने शानदार फ़न तामीर, लजीज खाने, मुहिम जोई के मौक़े और काबिल इस्तात के साथ ये सयाहों के लिए एक लाजमी मकाम है। इस तरह आज के सबक का हमारा ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ। इस पॉइंट के मुकम्मल होने के साथ ही हमारा सबक भी मुकम्मल हुआ। आज के सबक के इख्तिताम की जानिब जाने से पहले आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक के अंदर हमने मुल्क उज़्बेकिस्तान के वसाइल पर बात की। आज के सबक का हमारा पहला पॉइंट मुल्क उज़्बेकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर थे। इसी तरह आज के सबक का हमारा दूसरा पॉइंट जिस पर हमने गुफ्तगू की वो इस मुल्क की मादनियात थी। तीसरा पॉइंट जिस पर हमने बात की वो इस मुल्क की ज़राअत, और सबसे आखिरी पॉइंट इस मुल्क की सयाहत थी। इस तरह हमारा आज का ये सबक मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।